ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਈ 765 ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ 7 ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਂਸਡੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰੱਤੂ, ਲੜਕੀਆਂ ਭੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਮੀ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨਿਰਮਲਾ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪੋਤਾ ਅਸ਼ਰੀ ਰੱਤੂ, ਸਬਰੀਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਂਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਧੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਮਹੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਟੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 1915 ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਸ਼ੀਨਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਆਖੇ ਸੰਸਾਰ ਬਈ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਆਖੇ ਸੰਸਾਰ ਬਈ। ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ। ਦੇਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਦੇਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਵੇ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਬਈ। ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ
ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਸਾਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਸਾਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਿਓ ਨਾ ਫਸਾਵੇ ਸੀਸ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਬਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਈ 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 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਾਣੀ ਸਾਵਣ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਮਾਸੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਬੌਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪੰਤੇ ਧੰਮਨਾਗ ਮਹਾਥੇਰੋ ਅਤੇ ਥਾਏ ਪੰਤੇ ਫਰਾ ਵਿਚਾਨ ਮਹਾਥੇਰੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪੂਜੇ ਬੰਤੇ ਧੰਮਨਾਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਇਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है अते तुहानू नमो बुद्धा जय भीम जी जी नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय लोटस टीवी के सभी दर्शकों को सावन मासो सावन पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए आज इसके महत्व को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या क्या घटना घटी इसके ऊपर में भी बातचीत करेंगे फिर एक बार नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय मेरे नाल थाए पंते फरा विचान महाथेरो
Bhante ji, you are welcome in the Lotus TV studio. Thank you. I am Pavichan Thamalayo from Thailand. So I give you best wishes on full moon day. By blessing of Thaipan James. Sadhu Namo Buddhaya. थैंक यू ਬੰਤੇ जी। तो जिस तरह मैं पहले भी गल की है कि बहुत सारे लोग जो बुद्ध विहार में नहीं आ सकते वो घर बैठे ही जो सुन रहे हैं और ਬੰਤੇ जी इन्होंने सारे अज ब्लैसिंग भी देंगे और नाल जिस तरह दसिया है कि सावन पूर्णिमा की जानकारी भी देने धम्म की जानकारी भी देंगे। पूज्य ਬੰਤੇ जी, ये जो सावन पूर्णिमा जो कि बुद्ध विहार में बड़ी खुशियां नाल मनाई गई सी, उसकी महानता बारे दर्शकों को कुछ जानकारी दो जी। बिल्कुल। बुद्ध शासन में हर एक पूर्णिमा का अपना अपना एक महत्व है, जी। एक इम्पोर्टेंस है। जैसे कि पिछले महीने की जो पूर्णिमा हुई जी, उसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता था कि उस दिन से वर्षवास शुरू हुआ। जी, और उसके बाद में अगस्त महीने में जो पूर्णिमा आती है जी, उसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से उस पूर्णिमा के काफ़ी नाम से जी, अलग अलग राज्य में है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उस पूर्णिमा को जानते हैं। जी, मगर अगर हम पाली की बात करें तो पाली में श्रावण पूर्णिमा को सावन मासो कहते हैं। सावन मास, यानी जो मंथ होता है उसका शब्द है पाली में मासो। मासो, और जो श्रावण है, श्रावण ये शब्द संस्कृत का है, जी, लेकिन पाली का इसका उच्चारण होता है सावन मासो। सावन मासो, तो ये सावन मासो की जो पूर्णिमा होती है, इसमें भी बुद्ध शासन में काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण घटना घट चुकी है जिसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें या उसे जानने की कोशिश करें और उस अनुसार अगर हम अपने जीवन में उस घटनाओं से कुछ सीख ले सके तो जी। निश्चित तौर पे हमें काफ़ी लाभदायक फल प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण हम अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन, सुखी जीवन और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ये धम्म का सबसे बड़ा ज्ञान है। ਬੰਤੇ जी, सुना है कि उंगली माल की दम दीक्षा दो हुई सी, इस बारे दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे। नाल जो हमने ये भी सुना है कि वर्षाबाद में पिंडपात होता है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ऐसे कि सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि अंगुलीमाल, अंगुलीमाल वो एक रात में कोई अंगुलीमाल नहीं बना। ये उनका पहला नाम था अहिंसका, अहिंसक, और वो काफ़ी अच्छा ज्ञानवान, गुणवान, शीलवान व्यक्ति था। एक अच्छा स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। जी, और उसके ज्ञान से, उसके प्रेम भरे स्वभाव से उसके और भी कोई मित्र थे, वो काफ़ी ज्वेलस होते थे। जी, और जिस कारण वो उनके जो गुरु थे अहिंसक के, उनको उनके कान में उसके बारे में गलत सलत हमेशा चर्चा करते थे, जिसके कारण धीरे धीरे उनके गुरु उसके प्रति नकारात्मक बातें सुनकर उसके अगेंस्ट हो गए, विरोध में हो गए। जी, जी, और एक दिन उनके गुरु ने काफ़ी जोर से उनको डांटा, फटकारा, और जिस कारण अंगुलीमाल को उन्होंने अपने गुरुकुल से निकाल दिया। उस समय गुरुकुल ये शब्द यूज किया जाता था। जी, तो अपने गुरुकुल से उनको निकाल दिया, और गुरुकुल से निकाल देने के बाद में उनके कहा कि इसके बाद आप कभी मेरे आंखों के सामने नहीं आना। और इस तरह से वो निकल गए। निकल जाने के बाद वो अपनी गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए जी, जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद में पूरा अपना रूप, जो अपना नेचर था पूरा चेंज कर दिया। जी, जी, लोगों की हत्या करने लगे, लोगों के सर काटने लगे। और उनके गुरु ने कहा था कि कम से कम 1000 लोगों का आप वध करो। तो उसके हिसाब से उन्होंने
वो लोगों को मारना चालू कर दिया। और फिर वो काउंट कैसे करते थे कि उसने कितने मारा, कोई गिनती तो नहीं रह सकती। तो हर एक आदमी को मारने के बाद उसकी उंगली अपने गले में माला डालकर पहनते थे, जिस कारण उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल पड़ा। अब उनका काफी खौफ था, डर था। जी जी। और इतना डर था कि राजा महाराजा उस समय उस जंगल में यानी अंगुलीमाल की जगह पे जाने के लिए डरते थे। इतना उनका खौफ था। डाकू रहता है। हाँ जी। तो वहां पे कोई डाकू है, कोई ये है, अलग अलग नाम उनको मिले। हाँ जी। और फिर एक दिन जब क्योंकि हर समय का अपना एक चक्र होता है, तो शायद अंगुलीमाल का चक्र पूरा होने के करीब करीब होगा। जी जी। तो उसके बुरे कर्मों को उसको छुटकारा मिलने का समय आ गया होगा। तो उसी समय ये बात बुद्ध को बताते हैं और बुद्ध वहां पे जाते हैं। जी। बुद्ध जाने के बाद वो बुद्ध को मारने की कोशिश करता है, बुद्ध के पीछे दौड़ता है। बुद्ध बिल्कुल अपने नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन वो बुद्ध को पकड़ नहीं पाता। ये कहानी है, बुद्ध को पकड़ नहीं पाता। और बुद्ध से कहता है, अरे मैं आपके पीछे इतना भाग रहा हूँ, आप किस तरह से चल रहे थे जिससे मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, जिस कारण। तो बुद्ध उसको जवाब देते, अंगुलीमाल मैं तो कब का रुक चुका हूं, मैं तो एक जगह रुका हूं, भाग तो आप रहा है, संसार से भाग रहा है, भय से भाग रहा है, डर से भाग रहा है, खौफ से भाग रहा है, अपनी अंदर आंतरिक जो भयता है उससे भाग रहा है। मैं तो रुक चुका हूं, अपने अंदर के डर को समाप्त कर, अपने मन को शांत कर, तो तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। जी जी। और इस तरह से वो बात चलती है। और फिर बुद्ध उसको उपदेश करते हैं। कहानी काफी लंबी, उतना समय हमारे पास में नहीं है, मगर यही कहूंगा कि बुद्ध शासन में एक महत्वपूर्ण बात अंगुलीमाल की कहानी से ये आपने को सीखने को मिलती कि मनुष्य ने अगर उसके जीवन में अगर बुरे कर्म कर भी लिए, मगर वो सच्चे मन से अगर बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा समर्पित करके अगर वो भिक्षु बनता है, तो उसका ये नया जन्म होता है। और तब अंगुलीमाल का नया जन्म हुआ, वो भिक्षु बना, और भिक्षु बनते ही वो अरहत अवस्था तक पहुंच गया। और आपने दूसरा प्रश्न ये किया था कि क्या पिंडपात होता है क्या? ऐसे कि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, यानी सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद में वो खाना तो नहीं बना सकते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि हाथ में भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा पात्र लेकर वो घर घर जाने लगे, जिसे पिंड पाता कहते थे। और घर घर जाके जो भी लोग उनके भिक्षा पात्र में डाले उसको ग्रहण कर, यानी भोजन के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न न करते हुए जो मिला उसको शांत स्वभाव से खाने का। और इस तरह से फिर वो बुद्ध ने चालू किया। बुद्ध के बाद में धीरे धीरे बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी चालू किया। और जो डाकू जो कभी लोगों को मारता था, उनसे धन दौलत छीनता था, वो भी अंगुलीमाल एक दिन हाथ में भिक्षा पात्र लेके चारिका करने लगा। और चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय से अपना उपदेश घर घर पहुंचाने लगे, ताकि वो अगर हाथ में भिक्षा पात्र लेके घर लोगों के घर तक गए, तो उन्होंने अगर उनके भिक्षा पात्र में भोजन डाला, तो बुद्ध ने या फिर अंगुलीमाल ने या फिर बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें धम्म का उपदेश दिया, जिस कारण लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। और फिर से वह धम्म के रास्ते में चलकर इसी जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मैत्री, करुणा, मुदिता को प्राप्त कर अपने जीवन को निब्बान की ओर लेके गए, प्रज्ञा की ओर लेके गए। संडे ने लास्ट संडे बनते जी पिंडपात हमने किया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं काफ़ी सबसे पहले तो जितने भी वट प्रा महासंबुन बुद्ध विहार के जितने भी डिविटीज है, उन सब का मैं धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक्टिविटी है ये बुद्धिस्ट कल्चर को आगे बढ़ाने की एक्टिविटी है। और जिस तरह से भिक्षुओं ने विहार में पिंडपात किया है ना, तो ये पिंडपात से ये होता है कि जब हम पिंडपात करते तो हमारे अंदर का राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, मत्सर ये सारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि कभी आप राजा थे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और आज भिक्षु बन गए। आप सोनों के अन्य लग्जरी गाड़ी में घूमते थे, मगर आज आपने भिक्षा पात्र
पकड़ लिया और किसी उपासक ने आपके भिक्षा पात्र में 1 पाउंड डाल दिया, उसकी क्षण आवाज जब आपके कानों में गूंजती है तो आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं वो भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है, मगर इस जीवन में आपको संतुष्टि से जीना है, किसी के साथ वैर नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। तो भिक्षा पात्र करने से ये आनंद मिलता है और जो दान उसमें डालते हैं तो उनको भी उस तरह से वो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। तो ये कुशल कर्मा का एक माध्यम है, जी जी, अपने पुण्य पारमी को बढ़ाना, अपने पुण्य को अर्जित करना। और इसलिए बुद्ध ने उस समय ये सोचा कि लोग अगर पुण्य नहीं कर सकते तो उनको मैं पुण्य करने का मौका दूं, क्यों ना मैं ही उनके दरवाजे पे जाऊं। जी जी, सही गाना तो इसलिए ये पिंडपात की कल्चर भी बुद्ध ने लागू की। वंते जी, कुछ लोग अनजान लोग ये बात करते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये पिंडपात की प्रथा डालकर लोगों को भिक्षु की बजाय मंगते बोलते हैं। आप इसके बारे में क्या? नहीं, ये जो लोगों की धारणा है, बुद्ध को भी काला ऐसी नहीं है कि ये आज का सवाल नहीं, ये बुद्ध के समय का प्रश्न है। जब भगवान बुद्ध है ना युवा अवस्था में अपने उम्र के 35-36 साल के बीच में अपनी युवा अवस्था में हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा और भिक्षा पात्र पकड़ के लोगों के बीच में गए, भिक्षा लोग उसमें डालते थे, पिंड पात में वो जो भी खाना रुका सूखा जो भी वो डालते थे, तो बुद्ध बड़े शांत स्वभाव से उसको स्वीकार करते थे। लोगों ने गाली भी दी, लोगों ने भला भी कहा, बुरा भी कहा, लेकिन बुद्ध ने अपने धैर्य को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने मन को भटकने नहीं दिया। लोग तो कहेंगे आज भी अगर हम सोचे कल हम वॉल्वरहैम्पटन सिटी में अगर चारिका करने जाए तो जो बुद्धिस्ट डिविटी रहेंगे वो तो हमको दान दे देंगे, लेकिन जो नॉन बुद्धिस्ट है वो तो ये सोच अरे हट्टे खट्टे नौजवान हाथ में भिक्षा पात्र लेके ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या मालूम कि ये भिक्षा पात्र या पिंड पात करने से हम अपने अंदर में क्या क्या परिवर्तन लाते हैं। जब आपका आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बाहरी परिवर्तन हो जाएगा। अब आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ और बाहरी परिवर्तन में अगर हम सुख ढूंढेंगे तो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले एक तो इसकी महत्वता यह है कि आपका खाने के प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, मालूम नहीं क्या मिलना है। अब इसमें भी है कि कभी दूसरा इसके नियम भी है कि घर में जाने के बाद हम उस घर के दरवाजे के सामने सिर्फ 2 मिनट खड़े रह सकते हैं। अगर उस बीच में आपने हमारे भिक्षा पात्र में कुछ डाला तो हमारा है, नहीं तो हम आगे चले। तो ये जो है तो इसके अपने अपने नियम हैं और ये पिंडपात होना बहुत जरूरी है। और ये बुद्ध शासन और सारे भिक्षु संघ ने पिंडपात को जीवित रखा है। अभी भी लंदन में भी पिंडपात होते हैं और बाहर में भी पिंडपात होते हैं। यूरोप में जहाँ जहाँ भिक्षु रहते हैं वहाँ पिंडपात होते हैं। तो पिंडपात करना चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू वंते जी। ये सवाल डॉक्टर रविता दामा से भी किया था, तो डॉक्टर रविता दामा ने जवाब दिया था कि जो भिक्षु लोग हैं इनके क्या खेती है, खेमत जमीना है, ये तो आपके आश्रय है, चाहे कोई भी समा आ जाए इनको तो पिंडपात करना ही है और आपने देना है। थैंक यू वंते जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। तो वंते जी एक और ये भी सुना है कि यश कुल पुत्र की धम्म दीक्षा जानी प्रवज्या भी की घटना भी हुई थी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये बुद्ध शासन की यानी इस सावन मासों की ये पहली घटना है कि यश नामक जो एक उपासक था और काफी संतुष्ट था, काफी अच्छे जिसे हम कह सकते हैं कि आपके पंजाबी लहजे में खाते पीते घर का था, है ना। तो इस तरह से वो था, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, है ना। और शाक्य कुल से था, है ना, शाक्य वंशज था होने के बाद, लेकिन उसको आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। सब कुछ था, कभी कभी होता है कि आपके पास में सारी दुनिया है मगर फिर भी आप अंदर से दुखी हो और दुख का कारण आपको पता नहीं चलता। और वो ढूंढ रहा था, वैसे वो बुद्ध का अनुयायी था, ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते एक दिन वो बुद्ध के समीप चला गया। बुद्ध के समीप जाकर उसने बुद्ध से बातचीत की, अपने सारे जो थे प्रश्न बताया। बुद्ध ने उसको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उपदेश सुनते सुनते ही वो
श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंच गया और बुद्ध से डिमांड की कि मांग की कि भगवान बुद्ध मुझे अपना शिष्य बना ले। जी जी वो तो बना ही बना भिक्षु, साथ ही साथ उसके और 4 साथी भिक्षु बने। जी उसके साथियों के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी श्रमण बने। जी जी तो सारा परिवार काश्य वस्त्र परिधान कर बुद्ध के शिष्य बन गए। तो ये बता रहा है कि मनुष्य दुख के कारण ही भिक्षु नहीं बनता। हमारी बहुत से लोगों की अभी भी सोच होंगी कि ये जो संसार में भिक्षु लोग है ना, ये किसी न किसी पारिवारिक सामाजिक दुख के कारण इन लोगों ने वस्त्र पहन लिया। वैसी नहीं, वस्त्र ये आंतरिक मन शांति के लिए, आंतरिक खोज के लिए और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए ये वस्त्र होना जरूरी है, ताकि आप सारे विकारों से मुक्त होकर, सारे जवाबदारी से मुक्त होकर आप उस खोज की ओर निकले, उस सत्य की ओर निकले जिस सत्य से आपका मन संतुष्ट, शांत और औरों के लिए मैत्री के साथ में काम करे। तो इसके लिए फिर वो सारी चीज उसको ऐश को मिली, उसको देखकर उसके 4 साथी, सारा परिवार। तो ये बुद्ध शासन में ये घटना दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि भिक्षु बनना ये कोई अने दुखी व्यक्ति का काम नहीं। भिक्षु बनने के 2 ही रास्ते, जब आपका आंतरिक चित्त जी आपको वो इंडिकेटर दे कि नहीं, ये सारा का सारा संसार मेरे लिए नश्वर है, मेरी जो आंतरिक जो मन की अवस्था है वो तो आध्यात्मिक की ओर से है, प्रज्ञा की ओर है ना, और दुखों से मुक्ति पाने के लिए मेरी मानसिक अवस्था है, तब जाके आदमी इस शरीर पर चिवर संभाल पा सकता है। तो ये इसका ऐश का बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। जी थैंक यू जी, थैंक यू भांते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भांते जी ये भी सुना कि अनाथ पिंड की धम्म दीक्षा ते उन्होंने जीवन बारे भी सानू कुछ दसोगे जी? अनाथ पिंडक जी ये नाम ही बहुत बड़ा है बुद्ध शासन में। हाँ अनाथ पिंडक, अगर आज हम अनाथ पिंडक की बातचीत करें तो बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष अनाथ पिंडक ने दिए हुए जेत वन में गुजारे। अनाथ पिंडक बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध का अनुयायी बना और जब उसे बुद्ध को कुछ दान देना था तो उसको एक जेत राजकुमार था, उसकी पार्क थी या फिर उसका गार्डन था, है ना, तो वो उस बुद्ध को दान देना चाहता था। उसकी दान की परिभाषा जिसे आपने किया, मैं उस बात पे आऊंगा। उसकी दान की परिभाषा का कोई मूल्यांकन नहीं है। तो अनाथ पिंडक ने मुझसे पूछा कि ये आपका वन यानी पार्क गार्डन है ना, मुझे चाहिए, मैं बुद्ध को दान देना चाहता हूँ। तो वो जेत कहता है कि इसकी कीमत आप नहीं दे सकते। हाँ। तो बोले कितनी कीमत होगी? बोले आप नहीं दे सकते। तो बोले आप सिर्फ बोलिए, मैं इसकी सारी कीमत दे दूंगा। तो आप सोचो कि अनाथ पिंडक ने वो सारे की सारी गार्डन में सोने के सिक्के बिछा डाले और जेत राजकुमार जो था वो सोच रहा था कि ये ऐसी कौन सा दान है जो बुद्ध को देना चाहता है। तो बोले कि ये दान बुद्ध के सामने कुछ भी नहीं। बुद्ध ने जो मुझे दिया, जो मन की शांति जो मुझे मिली, तो इस तरह से अनाथ पिंडक ने वो दान दिया। मगर अनाथ पिंडक की कहानी ये बताती है कि अनाथ पिंडक जो था एक गृहस्थ था और गृहस्थ होकर उसने बुद्ध की शिक्षा को यानी 160 सुत्तास को उसने कंठस्थ करके रखा था। अच्छा जी, 160 सुत्तास को कंठस्थ करके रखा था, क्योंकि उस समय कोई राइटिंग का तो काम नहीं होता था, है ना, कि मैंने आपसे लिख के रखा और फिर आपने कभी मुझे सवाल किया तो मैं आपको जवाब दूंगा। वो सारा का सारा कंठस्थ करके रखा था और इसलिए उसे कहते हैं अनाथ पिंडक सुत्त भी कहते हैं। और ये अनाथ पिंडक सुत्त काफी महत्वपूर्ण है, यानी साधारण गृहस्थ जीवन के लिए काफी गंभीर और डीप मैसेज भी देता है। उसकी और एक कहानी ऐसी है कि अनाथ पिंडक जब बुजुर्ग हुआ, बीमार था,
तो बीमार था, तो उस समय वो बुद्ध से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध से मिल नहीं पाता। तो बुद्ध अपने शिष्यों को भेजते हैं, सारिपुत्र और आनंद को। जी। ये दोनों लोग जाते हैं और अनाथ पिंडक को उपदेश करते हैं। जी जी और अनाथ पिंडक वो उपदेश सुनते 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 जी निब्बान अवस्था को प्राप्त करता है। जी जी ये काफी महत्वपूर्ण है। और आज भी हम जब बीमार हो जाते तो भय हमारे मन में हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे मृत्यु के पश्चात इनको कौन संभालेंगे, उनको कौन संभालेंगे, ये भय। लेकिन ऐसे समय ही हमें बुद्ध के उपदेशों को सुनकर भय मुक्त होकर इस दुनिया से अगर हम जाते हैं तो हमें सद्गति अवस्था प्राप्त हो सकती बनते जी है, कुशल अवस्था प्राप्त हो सकती है। ठीक है। आपने बोला है कि जो सुत थे वो उनको एक तरह पंजाबी में कहते हैं मुँह जबानी याद की। ओके, हाँ, मुँह जबानी, हाँ। हाँ, तो कुछ है आप अभी आपको कोई सुत याद है उसमें? काफी कुछ सुत है वैसे तो अनाथ पिंडक को उसका यानी अगर हम उसका विवरण ये हाँ, करें एक कि दो। देखा जाए तो अनाथ पिंडक को जो 160 सुत याद थे, और स्पेशल उनको जो का मुखोद्गत है ना, कि उनको जुबानी याद था। हाँ, तो उसके एक को कोई तो वो जुबानी याद था। मिसाल के तो तौर पे। उसका सार ऐसे कहता है कि बुद्ध ने उनसे कहा या सारिपुत्र ने उनसे कहा, है ना, कि तब वो जब बीमार थे तो चित्त, चैतसिक, मन, लालसा, घृणा, इसके ऊपर में वो अनाथ पिंडक का सारा सूत्र था। और जिसे हमने बातचीत करे कि रसा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, घना विज्ञान, है ना, खंडक की बात करें तो ये भी सारा वो अनाथ पिंडक के सूत्र में आ चुका था। और ये सारी बातें जब अनाथ पिंडक ने सुनी तो क्योंकि उसकी इच्छा थी मैं बुद्ध से मिलूं, जी जी। तो बुद्ध कहते कि इच्छाओं को क्यों रख रहे हैं आप? हाँ, इच्छा तो खत्म होनी चाहिए ना। जब आप इच्छा, आप मेरे अच्छे अनुयायी हैं तो इच्छा किस बात की? हाँ मेरी शिक्षा अगर आपके पास में है तो उस शिक्षाओं के साथ में आप चलने की कोशिश करो, जी। तो एने मैं आपके साथ हूं। जी जी तो उसी उपदेश को सारिपुत्र अनाथ पिंडक को अच्छी तरह उसका वो डीप मैसेज उनको बताते हैं कि आपने मुखोद्गत किया है, जी, इसको जी। प्रैक्टिकल में लाओ। जी 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 जी। जुबानी है, जुबानी तो गुड कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकल अगर गुड नहीं है हाँ तो जी। फिर वो अच्छाई का क्या काम है? सही बात। तो ये मुखोद्गत उनने किया था, लेकिन उसके मुखोद्गत को सारिपुत्र ने अच्छी तरह उनको समझाया अंत में, और इस कारण फिर अनाथ पिंडक अपनी शांत और शीतल अवस्था के साथ इस दुनिया से जाते हैं। थैंक यू माता जी। आखिर में आपने सभी को जो बुद्ध विहार नहीं आ सके, जो घरों में बीमार हैं या किसी भी कारण बुद्ध विहार में नहीं जा सके, उसको आशीर्वाद भी देना है। पर उनसे पहले हमें एक दो सवाल और भी है मंत्री जी, कि जो पहली संगति, बुद्ध संगति, जो प्रथम बुद्ध संगति भी के बोलते हैं या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएंगे आगे? जी, इसी सावन मासों में प्रथम संगति भी हुई, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि पाली में प्रथम संघायान, जी, फर्स्ट काउंसिल ऑफ द संघा, है ना, जिसका होना एक कारणवश हो गया जी कि बुद्ध ने अपने निब्बान के समय जी जी अंत में तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, जी और वो बुजुर्ग व्यक्ति अंत में बुद्ध से दीक्षा लेता है, जी यानी प्रवज्जित होता है। जी जी और आनंद कहता है कि भगवान अभी आप निब्बान की अवस्था में हो, है ना, जी, जी। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आप उसको दीक्षित करें। जी, तो बुद्ध जी। ने उस समय कहा कि आनंद, मेरे पास में जो कुछ भी है जी। मैं अपने पास कुछ नहीं रखना सकता, सब कुछ बांटना चाहता हूँ, और जी। इस कारण उसकी दीक्षा होती है। जी और बुद्ध के निब्बान के बाद में जो बुजुर्ग था जी, जी। वही उन सारे बुद्ध के विनय को उथल पुथल करना चालू कर देता है। जी और उथल पुथल चालू करना देता है तो कुछ भिक्षु में हलचल मच जाती कि बुद्ध की जो वाणी है
उसको अगर इस तरह से कुछ लोग उथल पुथल करना रख जाएंगे तो फिर धम्म का प्रचार और प्रसार सही मायने में नहीं हो पाएगा। जी जी और इसलिए फिर वो प्रथम धम्म संगति उस समय ऑर्गेनाइज की गई और वो धम्म संगति का सारा जी यानी क्योंकि हम भी अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर खर्चा तो धन होता है। राशि तो हो नहीं सकती। खर्चा तो होता है। उस सारे प्रोग्राम की सारी व्यवस्था मगध के राजा अजात शत्रु ने की थी। उसमें भी क्योंकि अगर हम कोई संग्रहण करना चाहते जी। हैं तो हमारी खान पान की व्यवस्था अगर उपासक के माध्यम से नहीं हाँ होगी जी, हाँ तो जी। हम भी संग्रहण कैसे करेंगे। तो जी, सारी व्यवस्था जी, जी। वो अजात शत्रु के माध्यम जी, से हुई और शत्रु काफी अच्छी तरह हुई। जी तो वो संगति का कारण ही वो बुजुर्ग भिक्षु था जिसका नाम था सुभद्र। सुभद्रा, हाँ जी वो सुभद्र भिक्षु के सारे विनय को, जी जी भिक्षु के सारे शिक्षा को जी मानने से इनकार करता है और अब हम अपने हिसाब बुद्ध नहीं रहे, अब हम अपने हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये संगायन हुआ। हाँ, और इस संगायन की अध्यक्षता महाकाश्यप भंते ने की थी महाकश्यप और इस भंते के अध्यक्षता में ये सारा संगायन यानी जिससे कह सकता कि हम फिर से एक शब्द लेते मुखदत्त हुआ यानी फिर से जुबानी, क्योंकि उस समय कोई लिखावट नहीं होती थी। जी जी तो उस समय वो एवं में सूतन एकन समयन भगवा हाँ। यानी एक समय मैंने भगवान बुद्ध से ये उपदेश सुना। उसके फिर अलग अलग कई राजगृह है, कई श्रावस्ती है, कई जेतवन है, ऐसी ऐसी जगह के फिर उसमें आगे वो होती रहती जुड़ते है। गए। तो एवन में सुतन एक समय मैंने भगवान बुद्ध से ये सुनी और इस तरह से वो पूरा संघ जिसमें 500 अरहत भिक्षु थे और भिक्षु थे। और ये संग्रहण को अगर हम देखें तो इसकी भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी जी अब प्रश्न ये था कि ये संगायन जी। अधूरा था, संगायन पूरा ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा जी संगायन पूरा न होने का कारण ये था कि आनंद, अब बुद्ध की सारी वाणी अगर किसी को कंठस्थ थी तो आनंद। बुद्ध के शिष्य आनंद आनंद थी। को थी हाँ। और बाकी जैसे मैंने कुछ बातें कंठस्थ करके रखी, भंते ने कुछ बातें कंठस्थ करके रखी और कुछ भंतों ने कुछ बातें कंठस्थ करके रखी, लेकिन वो सही है या नहीं इसके लिए अगर कोई सही मायने में उत्तर दे सकता था तो आनंद। लेकिन वो संगायन में सारे अरहत भिक्षु बैठने वाले थे और उस समय आनंद अरहत नहीं था। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भंतों के माध्यम से बताया गया कि आनंद संगायन तब पूरा होगा जब आप अरहत बनकर इस संगायन में बैठोगे। फिर आनंद भी कोशिश करता है अरहत प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसका रीजन ये है पंत जी, हाँ। आनंद से फिर शुरू करेंगे। बिल्कुल। पहले कुछ मैसेज आए हैं, ओके, कोई बात नहीं। कोई जानना बहुत जरूरी है। मैं सॉरी आपको ओके ठीक है ठीक है। क्योंकि आपका जो ज्ञान दे रहे हैं वो लोग सुन भी रहे हैं। और सबसे पहले हमारे एक्स मेयर साहब विशन दास बैंस जी वो आपका प्रोग्राम बहुत पसंद कर रहे हैं तो सभी को अपने बधाइयाँ दे रहे हैं। नंजर रत्तू जी को, आंटी जी को और अलीशा और माया को भी। इसी तरह साढ़े बुजुर्ग राम प्रकाश मोहम्मद जी ये पंत जी हुणां नूं प्रणाम कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਲਤਰ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਤਰ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਬੱਧਨ, ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਧਨ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਕਮਲੇ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਟਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। KL ਚਾਂਦ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸਿਸ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ, ਅਨੀਸ਼ ਰੱਤੂ, ਪ੍ਰਿਆ ਰੱਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਰੱਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ, मेरे पर हाथ रहे पंत जी। तो ये जो लोटस टीवी है, हाँ जी, तो चलता रहेगा। हाँ जी, तो पंत जी तो आप बात कर रहे थे बीच में हमने, हाँ जी, आनंद जी दी, तो पंत आनंद जी की बात तो आप समाप्त कर लीजिए। मैं थोड़ी सी बात क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ हाँ। भंते आनंद को जब बताया गया कि आपको अरहत अवस्था प्राप्त करना है, तो भंते आनंद अरहत बनने की इच्छा शक्ति के साथ में ध्यानस्थ हुए। वो इच्छा शक्ति उन्हें अरहत नहीं होने दे रही थी। फिर उनको मार्गदर्शन किया कि आप सिर्फ ध्यानस्थ हो जाओ। जब वो सारे इच्छा शक्ति के परे होके ध्यानस्थ हो गए, तब जाके अरहत बने और फिर वो सारा संगायन हुआ। जी जी। छठा संगायन, जी जी। अब ये पहला संगायन हुआ उस समय, जी। छठा संगायन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समय हुआ। वो बर्मा में हुआ। जी हाँ हाँ। खंडमंडल 1954 में छठा संगायन हुआ और वो बर्मा में हुआ। तो एक तरह हम ये कह सकते, जिस तरह से अनाथ पिंडक की बात आती है ना, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी तथागत भगवान बुद्ध का धम्म मुखदत्त था, जुबानी था। जी जी। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा भी बुद्धिज्म के ऊपर में काफी सारी चीजें साहित्य लिखा गया। जी। जैसे कि आप एक दिन देखते हो कि बुद्धानी धम्मा, ये सबसे बड़ा बाबा साहब के माध्यम से बुद्धिज्म के ऊपर में साहित्य लिखा गया। और भी काफी साहित्य है। तो ये है कि साधारण व्यक्ति भी बुद्ध धम्म में आकर अपने अंदर बदलाव ला सकता है, मानसिक बदलाव ला सकता है, वैचारिक बदलाव ला सकता है, सामाजिक बदलाव ला सकता है, आर्थिक बदलाव ला सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर वह धम्म के रास्ते में सही चले तो। क्योंकि इसके 4 ही पिलर है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इस 4 पिलर के आधार पर हम अपना जीवन बदल सकते हैं, औरों का जीवन बदल सकते हैं। मगर अगर वो 4 ब्रह्म ज्ञान अगर हमारे पास में नहीं है, तो वो हम औरों को भी नहीं बता सकते। थैंक यू। 4 ब्रह्म विहार की भी पंते जी हुणी गल कर दी है, तो इन्होंने भी एक्सप्लेन कि फिर भी करांगे। हुण टाइम बहुत अपना घट रह गया है। पंते जी तुसीं आशीर्वाद देने तो पहला एक होर साडे निर्मला भाटिया जी बहुत बहुत प्रोग्राम पसंद कर रहे, पंते जी प्रणाम कर रहे, आंटी नंजन उन्होंने हैप्पी बर्थडे कर रहा। पंते जी समा बहुत थोड़ा जा रहा है, तो सारे साडे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं देश विदेश के विच वो करी बैठे हैं, उन्होंने तुसीं मंगल कामना और तुसीं उन्होंने आशीर्वाद दियो जी। जी सभी धम्मोपासक उपासिका जो बुद्ध धम्म संघ से जुड़े हैं, बुद्ध का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, और ये वर्षवास का समय है। विहार में एवरी संडे और एवरी वेडनेसडे मेडिटेशन भी होता है और डेली चैंटिंग भी होती है। जिसे लगता है कि वो चैंटिंग में आ सके तो चैंटिंग को आकर बैठ सकता है, मेडिटेशन भी कर सकता है। और हम साल भर तो अपने लिए जीते हैं, मगर कम से कम ये 3 महीने भिक्षु के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा समय दीजिए, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी आपको आनंद आएगा, काफ़ी आपको सुकून प्राप्त होगा, काफ़ी आपकी मन की शांति आपकी डेवलप होंगी, आपकी लविंग काइंडनेस बढ़ेंगी, आपका माइंडफुलनेस के अंदर में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये वर्षवास में हम कर सकते हैं, क्योंकि वर्षवास सिर्फ शब्दों में नहीं किया जाए, तो उसको प्रैक्टिकल अधिष्ठान लेकर अगर हम वर्षवास को करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे लाभदायक रहेगा, मंगलदायक रहेगा, और इससे हम सब का मानव जाति का भला होगा। और इसलिए आज पूरे यूके तथा यूरोप में वर्षवास बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। लोग विहार में आकर भिक्षु की सेवा कर कर भिक्षु ने जो अधिष्ठान लिया उसमें
अपना योगदान दे रहे, अपना सपोर्ट कर रहे कि भंते आप इस काम के लिए आगे चलो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ में हैं। तो आज खास तौर पे जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया है, काफ़ी बुजुर्ग धम्मो उपासिका नंजो रत्तू जी, जो समय समय में काफ़ी दान देते हैं, क्योंकि दान का अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व है। और मैं आशा करता हूँ कि आज यहाँ पे जो भिक्खु संघ है, वो भिक्खु संघ के माध्यम से उनके आरोग्य के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए हम मंगल कामना करते, मंगल मैत्री करते हैं कि बुद्ध धम्म संघ की बल से उन्हें सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो, उनका कल्याण हो, मंगल हो। सो अंत में हम बुद्ध की ब्लेसिंग के साथ में आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में वेनेरेबल प्रा विचाय महाथेरा जी है, जो थाईलैंड से है, और हमारे साथ में वालोरहंटम वट प्रा महासंबुन बुद्ध विहार में वर्षावास कर रहे काफ़ी सीनियर मोंक्स हैं। तो हम सब मिलकर आपको आपके जीवन के लिए बुद्ध धम्म संघ की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसिंग भंते। कैन वी डू ब्लेसिंग? अभिवादन नित्यां उत्थापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं हलां। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वच्छ तत्तो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्झतु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सभी उपासक उपासिका को शुभ आशीर्वाद, कल्याण हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू पंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मौका मिले तो पंते जी फिर भी आउणगे। तो जिस तरह पंते जी ने दस्सिया कि बुद्ध विहार विच एक होर बंगलादेशी भिक्षु समना श्री जी भी हैं, और एक होर थाई भिक्षु हैं। 4 भिक्षु इस वेले वी आर वेरी लकी कि बुद्ध विहार दे विच 4 भिक्षु हैं इस बार। तो जो वर्षावास है पूरे 4 भिक्षु पूरे संघ दे नाल एक्टिव मना हो रहा है। तुसी जद भी चाहो तो तुसी आ सकते हो। इस साल जो कथीना है 20 अक्तूबर नूं तुसी जरूर उस विच आउणा है। तो एक बार फिर मैं आंटी नंजो जी का लोटस टीवी वालों डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, और आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने अज का प्रोग्राम देखा है और मैंने फीडबैक किया है। प्रोग्राम समाप्त है। नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत जी।